चलो हेलो, कहाँ है चीज़ा? हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल टाइम पे आज हम। अभिनव की बात दिल पे लग गई, बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए हम लोग। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी सबको। ठीक है, एक सेकेंड बस, लाइव चलते हैं। हेलो प्रीतिशा प्रियदर्शनी दास, कैसे हो? मॉल कंठालिया इज बैक ऑन द स्ट्रीम। कैसे हो मॉल कंठालिया? तो आज कोशिश करेंगे 10 पेजेस पढ़ने की। तो देखते हैं, हाफ एन आवर की स्ट्रीम रहेगी और हम ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश पूरी करेंगे। पेज नंबर 181 से शुरू कर रहे हैं और लास्ट पेपर होना चाहिए हमारा 193, ताकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो पाए। ठीक है, चलो। Keep in mind the fact that every person with whom you associate is like yourself, seeking the opportunity to accumulate money. If you talk about your plans too freely, you may be surprised when you learn that some other person has beaten you to your goals by putting into action ahead of you. तो देखो, बात ये कही गई है कि हर कोई आप ही की तरह होता है। अगर आप अपने चीज़ों को मतलब अपनी चीज़ों को करना चाहते हो, जैसे अचीव करना चाहते हो, हर कोई अचीव करना चाहता है। तो वैसे ही अगर आप सबके साथ अपने प्लान डिस्कस करोगे तो फिर क्या होता है कि वो भी तो आपके प्लान को देखकर आपसे आगे निकल सकता है। तो अपने प्लान्स को हर किसी को नहीं बताना इतना फ्रीली। जो आप कर रहे हो पहले उसे करके दिखा दो, फिर बताओ, है ना? हेलो अनीता जी, हाउ आर यू? फाइनली कल संडे, हाँ कल रेस्ट डे होगा सबका। ओ शीट, क्लीन शेव, थैंक यू। अरे आज ज़्यादा ही ओके। हेलो मॉल, हाउ आर यू? चलो, मॉल के चेहरे में मुस्कुराहट आई, कल संडे है, रेस्ट डे है। चलो आगे देखते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एज अ रिमाइंडर टू योर सेल्फ टू फॉलो दिस एडवाइस, इट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू कॉपी द फॉलोइंग एपिग्राम अ लिटिल। ये भी हम पढ़ चुके थे कल। फ्रीडम और डेथ ऑन अ डिसीजन, ये पढ़ेंगे, या तो आज़ादी या तो मौत। हेलो मॉल, हाउ आर यू? The value of decision depends upon the courage required to render them. The great decisions, which served as the foundation of civilizations, were reached by assuming great risk, which often meant the possibility of death. Lincoln's decision to issue his famous proclamation of emancipation, which gave freedom to colored people of America, was rendered with full understanding that this act would turn thousands of friends and political supporters against him. He knew, too, that the carrying out of the proclamation would mean death to thousands of men on the battlefield. In the end, it cost Lincoln his life. That required courage. Socrates' decision to drink the cup of poison rather than compromise in his personal belief was a decision of courage. ओहो, अलार्म बज गया। सेम ब्रो, तुम बताओ? बस जिंदा हूँ, चल रही है ज़िंदगी। हेलो जॉन लोकी, हाउ आर यू? मैंने सोचा था छोटू का पिक लेके बोलूँगी शिवानी को कि ये विश कर रहा है, लेकिन छोटू सो गया, बाहर नहीं आया। और अच्छा, मजदूरी वाला जीवन है। सुबह उठो, थोड़ा पढ़ो, कोचिंग जाओ, रात को 8 बजे घर आओ, खाना खाओ, थोड़ा टाइम पास करो, पढ़ो और सो जाओ। कोई नहीं कोई नहीं, आज ये मजदूरी वाला जीवन आपको आगे आराम देगा। अपने केव में सो गया वो, लेकिन कहीं छुप के। क्या बात है, नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटू से सीखो। It turned time ahead a thousand of years and gave to people then unborn the right to freedom of thought and of speech. किससे बातें मत करो, ओनली आप पढ़ते जाओ। ओके जॉन लोकी। The decision of General Robert E. Lee when he came to the parting of the way with the Union and took up the cause of the South was a decision of courage, for he well knew that it might cost him his own life, that it would surely cost the lives of others. But the greatest decision of all time, as far as any American citizen is concerned, was reached in Philadelphia, July 4, 1776, when 56 men signed their names to a document which they well knew
would bring freedom to all America or leave every one of the 56 hanging from a gallows. You have heard of this famous document, but you may not have drawn from it the great lesson in personal achievement it's so plainly taught. अब देखो ये वाला हम पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा से पढ़ रहे हैं. We all remember the date of the momentous decision, but few of us realize what courage that decision required. We remember our history as it was taught. We remember dates and the names of the men who fought. We remember Valley Forge and Yorktown. हम लोग जानते हैं हमें किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे लिए कितने लोगों ने लड़ाई की, हमें सब याद है. We remember George Washington and Lord Cornwallis, but we know little of the real forces back of these names, dates, and places. We know still less of that intangible power which ensured us freedom long before Washington's army reached Yorktown. We read the history of revolutions and falsely imagine that George Washington was father of our country, that it was he who won our freedom, while the truth is Washington was only an accessory after the fact because victory for his armies had been ensured long before Lord Cornwallis surrendered. This is not intended to rob Washington of the glory he so richly, he so richly merited. Its purpose rather is to give greater attention to the astounding power that was the real cause of his victory. It is nothing short of tragedy that the writers of history have missed entirely even the slightest reference of the irresistible power which gave birth and freedom to the nation destined to set up new standards of independence for the for all the peoples of the earth. I say it is a tragedy because it is the self same power which must be used by every individual who surmounts the difficulties of life and forces life to pay the price asked. Let us briefly review the event which gave birth to this power. The story begins with an accident in Boston, March 5, 1770. British soldiers were patrolling the streets, by their presence openly threatening the citizen. तो जब ब्रिटिश सोल्जर्स क्या कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे स्ट्रीट्स में, तो मतलब खुलेआम धमका रहे थे सिटीजन्स को. द कलोनिस्ट रिजेंट आर्म्ड मैन मार्चिंग इन देयर मिडस्ट. अब क्या वो उन लोगों ने थोड़ा सा वो होता है ना कि रेजिस्ट किया. दे बिगेन टू एक्सप्रेस देयर रिजेंटमेंट ओपनली. उन्होंने भी अपना दुख दर्द खुलेआम बताना शुरू किया. हर्लिंग स्टोन्स एज वेल एज एपिथेट्स एट द मार्चिंग सोल्जर्स. जो मार्च करते हुए आ रहे थे सोल्जर, उन पर पत्थर वत्थर बरसाए. अंटिल द कमांडिंग ऑफिसर गेव ऑर्डर फिक्स बायोनेट्स चार्ज. तब तक पत्थर बरसाए जब तक कमांडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर नहीं दिए थे. अब ऑर्डर दे दिए. अब देखो क्या होता है. द बैटल वॉज ऑन. अब बैटल हो गई दंगाइयों के बीच और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच. इट रिजल्टेड इन द डेथ एंड द इंजरी ऑफ मैनी. और इसमें क्या हुआ, बहुत लोगों की जान गई और बहुत लोगों को इंजरी भी हुआ. 6 लोग. एमराज गेमिंग इज ऑन द स्ट्रीम. हेलो एमराज गेमिंग, वेलकम बैक टू द चैनल. एंड ओनली हिंदी में करो, इंग्लिश मत पढ़ो. ओके, जॉन लोकी कह रहे हैं. ओके, नेक्स्ट बुक मैं कोशिश करूँगा हिंदी में ही लाऊंगा. डू एपिक शिट के बाद हम लोग नेक्स्ट बुक हिंदी में ही पढ़ेंगे, ठीक है. हिंदी में ही अब पढ़ने की कोशिश करूँगा मैं. ब्रिटिश सोल्जर्स ने पेट्रोल भी लूटा था, बहुत सब कुछ. अरे भाई इतनी फॉर्मेलिटीज. ब्रिटिश में तो म्यूज़ियम है एक चोरी वाले सामान का. अच्छा, किसी को पता है द स्टोरी ऑफ कोहिनूर? द स्टोरी ऑफ कोहिनूर. कैसे इंडिया से वो वहाँ गया. हमारा ब्रिटेन नाम ही चोरी है. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं. मुझे पता है नेशन बॉल्स. अगर पता है तो डिटेल में बताओ. मैंने अभी रिसेंटली एक ध्रुव राठी की पूरी वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी है. उसने ध्रुव राठी ने काफ़ी अच्छे से समझाया.
उसे कर्स भी बोला जाता है, द कर्स ऑफ कोहिनूर भी। जिसके पास कोहिनूर हीरा है वो दुनिया पे राज करेगा, प्लस उसी के साथ दुनिया की हर बुरी चीज़ होगी। तो यहाँ पे कोहिनूर को एक अनलकी डायमंड माना जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, अनलकी डायमंड माना जाता है। और मेरे हिसाब से मतलब जो आपके मुस्लिम्स थे या फिर क्या बोलते हैं उन्हें, हाँ, तो उधर क्या होता है कि वहाँ पे रूबी करके एक था रेड कलर का, उनको मतलब कलरफुल डायमंड ज़्यादा पसंद आते थे। कोहिनूर उतना फेमस नहीं था उस टाइम पे, बट जो हमारे हिंदू वाले लीडर्स थे उनको ज़्यादा पसंद था। आगे बढ़ते हैं। अरे तुम्हारा क्या रहा, 10th का रिज़ल्ट अच्छा रहा? ओह मोन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मुझे तो 12th के रिज़ल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सी ए लाइन है ना। आगे देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। I say it is a tragedy because it is the self-same power which must be used by every individual who surmounts the difficulties of life and forces life to pay the price asked. Let us briefly review the events which gave birth to the power. The story begins with an incident in Boston, March 5, 1770. British soldiers were patrolling in the street by their presence, openly threatening the citizens. ठीक है, चार्ज भी हो गया। The battle was on. It resulted in death and injury of many. The incident aroused such resentment that the Provisional Assembly, made up the prominent colonists, called a meeting for the purpose of taking definite action. Two of the members of that assembly were John Hancock and Samuel Adams. Long live their names! They spoke up courageously and declared that a move must be made to eject all the British soldiers from Boston. तो उन्होंने बोला सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को बॉस्टन से हटा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना कत्लेआम किया। रिमेंबर दिस अ डिसीजन, इसको याद रखना कि एक डिसीजन था। इन द माइंड्स ऑफ टू मैन, दो लोगों के दिमाग में बस ये आइडिया आया कि हमें सारे ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है, अपने बॉस्टन से हटाना है। कोहिनूर जिसके भी हाथ लगा उसका राज्य ख़त्म हो गया। कोहिनूर से सिख राज, मुगल राज, मराठा राज एंड सिख राज, हाँ सिख राज भी गया, मुगल राज भी गया, मराठा राज भी गया, एंड यहाँ तक ब्रिटिश राज भी ख़त्म हो गया। हाँ बिल्कुल सही कहा, ब्रिटिश राज, इतना फैला हुआ राज्य भी ख़त्म हो गया। और भी बहुत हुए थे। ये डायमंड अरुणाचल से निकला। गुड नेशनल बॉल्स, अच्छी नॉलेज है, गुड नेशनल बॉल। फिर मॉरल चेंज द टॉपिक, मेरे को नहीं बताना, मेरी कंपार्टमेंट आई। फिर ये ब्रिटिशर्स ने अपने मुकुट पे लगाया, बस सोचा, और ये आज तक उस पगली के सर पर है। लाइक शेयर एंड टैग फॉर मोर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारी इन्फॉर्मेशन नेशन बॉल ने अभी तक जो दी है बिल्कुल सही। आई गेस 133 ईयर्स से रखवाली कर रहा है ब्रिटिश। अभी जो आपका इंग्लैंड है, आई गेस इंग्लैंड में है ना कोहिनूर, और ये भी है कि उसने अपना जो उसका ओरिजिनल था ना, जितना बड़ा वो था उसको थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश करवा दिया है तो वो और छोटा हो गया, उसके डायमेंशंस चेंज हो गए, पहले जैसा था अब नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। द रिक्वेस्ट वॉज ग्रांटेड, द ट्रूप्स वर रिमूव फ्रॉम बॉस्टन। अब देखो, रिक्वेस्ट असेंबली में मान ली गई उन दो बंदों की जिन्होंने कहा कि ब्रिटिशर सोल्जर्स को यहाँ से हटाया जाए। अब उनका डिसीजन रखा गया, बट द इंसिडेंट वॉज नॉट क्लोज। It had caused a situation destined to change the entire trend of civilization. Strange is it not? How the great changes, such as American revolutions and the World War, often have their beginnings in circumstances which seem unimportant. It is interesting also to observe that these important changes usually begins in the form of defense decisions in the minds of a relatively small number of people. Few of us know the history of our country well enough to realize that John Hancock, Samuel Adams, and Richard Henry Lee, the Provincials of Virginia, were the real fathers of our country. Richard Henry Lee became an important factor in this story by reason of fact that he and Samuel Adams communicated frequently by correspondence, sharing freely their fears and their hopes concerning the welfare of the people of their province. From this practice, Adam convinced the idea that a mutual exchange of letters between 13
colonies might help to bring about the coordination of efforts so badly needed in connection with the solution of their problems. 2 years after the clash with the soldiers in Boston, March 72, Adams presented this idea to Assembly in the form of a motion that a correspondence committee be established among the colonies, with definitely appointed correspondents in each colony for the purpose of friendly cooperation for the betterment of colonies of British America. Mark well this incident, it was the beginning of organization of the far-flung power destined to give freedom to you and to me. The mastermind had already been organized. It consisted of Adams. वो बंदा नकली था. How? बस करना. अरे सही में. 84. Just for sub lol. भाई आज एक नकली बंदा रेड मारने आया था. फेक वर्ल्ड. अच्छा. हाँ, क्वीन विक्टोरिया के मुकुट पे है. मोदी कुछ बोले थे ना कि वो कोई नूर हमारा वापस आएगा. भाई आज एक नकली बंदा रेड मारने आया था. लंदन शहर दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाजार है. वो नकली था. फेक वर्ड. जस्ट फॉर सब लॉल. स्पैमिंग खत्म. अब 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है? मेरे को नहीं लगता वो नकली था. स्निफ पफ था ना नाम. शुभ रात्रि. साइंस लिया है. पीसीबी प्लस आईटी इंजीनियरिंग. अरे भाई 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 भाई, अरे देखो, बायो हटा दो, ये आईटी हटा दो, दोनों में से एक चीज़ हटा दो, दोनों अलग अलग हैं. ठीक है. अच्छा, आपको मैथ्स नहीं पढ़नी क्या? मैथ्स नहीं पढ़नी इसलिए आईटी लिए, तब ठीक है. हाँ, मैथ्स नहीं पढ़नी इसलिए आईटी लिए तो बढ़िया है. पीसीबी आईटी इंग्लिश ओके, अच्छे सब्जेक्ट हैं. हाँ, मुझे वो लोग बड़े ख़तरनाक लगते हैं जो मैथ्स विद बायो लेते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग फील्ड है. उसे वालों आता नहीं और उस टाइम ही ज़्यादा बोल रहा था. बाकी टाइम साथ वो ट्रिक है दूसरों की लाइफ से बंदा लाने का. साथ उसकी थी 9 मिनट. अच्छा, ओ मैं उठ गया था अब उस पर. आज की थी एमराज गेमिंग. तबीयत कैसी है अब? आज की थी लाइव स्ट्रीमिंग या नहीं की थी? जिसने भी सब किया वो सब अनसब कर चुके हैं. उसे वैलो आता नहीं और उस टाइम ही वो ज़्यादा बोल रहा था. बाकी टाइम शांत वो ट्रिक है दूसरों की लाइफ से बंदे लाने का. साथ वॉचिंग उसकी थी 9 मेरी. अच्छा, जिसने भी सब किया वो सब अनसब कर चुके हैं. मैं भी अनसब करके आती. चलो बढ़िया. Meanwhile, the British were not idle. They too were doing some planning and masterminding on their own account, with the advantage of having back of the money and organized soldiery. The Crown appointed Gage to supplant Hutchinson as the governor of Massachusetts. One of the new governor's first act was to send a messenger to call on Samuel Adams for the purpose of endeavoring to stop his opposition by fear. We can best understand the spirit of what happened by quoting the conversations between Col Fenton, the messenger sent by Cage, and Adams. Col Fenton, I have been authorized by Governor Gage to assure you, Mr. Adams, that the governor has been empowered to confer upon you such benefits as would be satisfactory, endeavor to win Adams by promise of bribes, upon the condition that you engage to cease in your position to the measures of government. It is the governor's advice to you, sir, not to incur the further displeasure of His Majesty. Your conduct has been such as make you liable to penalties of an act of Henry VIII, by which person can be sent to England of a governor of a province. But by changing your political course,
You will not only receive great personal advantage, but you will make your peace with the king. ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल नॉलेज होगी, पॉलिटिकल कोर्स किया हुआ होगा, तो आपको किंग के साथ भी आप थोड़ा सा शांतिपूर्वक रहोगे और प्रजा के साथ भी, जिसमें भी हो गया। 12 आवर्स लाइव कर रहा था, नेट गया लॉल 10 आवर प्लस। अरे भाई भाई यार, इतना देर लाइव करना अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा है, अच्छा है, गुड गुड गुड। पर अपने आप को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना, ठीक है? मज़ा आ रहा है तो ही खेलना। अमन जी गिटार मिलेगा थोड़ा। टाइम क्या हो रहा है? ठीक है, 30 मिनट्स के बाद गिटार, 10 मिनट और रह गए हैं, उसके बाद गिटार, ठीक है? पक्का। Majority world have sent back an invasive reply, but not Adams. He insisted upon Col Fenton's word of honor that the colonel would deliver the governor the answer exactly as Adams would give it to him. Adams answered, "Then you may tell Governor Cage that I trust I have long since made my peace with the king of the righteous. No personal considerations shall induce me to abandon the righteous cause of my country. And tell Governor Gage it is the advice of Samuel Adams to him, no longer to insult the feeling of exasperated people. Comment as to the character of this man seems unnecessary. It must be obvious to all who read the astounding message that its senders possessed loyalty of the highest order. This is important. Racketeers and dishonest politicians have prostituted the honor for which such men as Adams died." When Governor Gage received Adams' caustic reply, he flew into a rage and issued the proclamation which read, "I do hereby in His Majesty's name offer and promise His most gracious pardon to all the persons who shall forthwith lay down their arms and return to the duties of peaceable subjects, accepting only from the benefits of such pardon Samuel Adams and John Hancock, whose offences are of too flagitious a nature to admit of any other consideration but that of contingent punishment." As one might say in the modern slang, Adam and Hancock were on the spot. The threat of the irate governor forced the two men to reach another decision, equally as dangerous. ठीक है, दूसरा सज़ा देने की बात की, पर इक्वल ही होगा वो भी, उतना ही दर्दनाक. They hurriedly called a secret meeting of their staunchest followers. Here the mastermind began to take on momentum. After the meeting had been called to others, Adams locked the door, placed the key in the pocket, and informed all present that it was imperative that a congress of the colonists be organized and that no man should leave the room until the decision for such a congress had been reached. कंपल्सरी चूज करना पड़ता है. फिजिकल एजुकेशन भी बेकार है मेरा, और ले लोड कम होगा. आईटी और बायो का साथ में कोई काम है? आईटी के साथ और क्या है? फिजिकल एजुकेशन, हाँ काम आ जाएगी. फिजिकल एजुकेशन आपके लिए हेल्प करेगी. अगर फिजिकल एजुकेशन लोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है. आईटी से बेटर है. आईटी में लॉजिक लगेगा, रट्टे मारने पड़ेंगे कुछ चैप्टर्स के, दिक्कतें आएंगी. पर अगर आईटी और कंप्यूटर से रिलेशन है, आपका पसंद है, तो पढ़ सकते हो. ज़्यादा टफ नहीं है आईटी, ये कह सकता हूँ पे मैं पढ़ने जैसा कुछ है नहीं. ठीक है, मतलब स्कूल लेवल में आईटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो. स्कूल लेवल में इतना डीप में नहीं है. तो अगर पसंद नहीं है तो मेरे हिसाब से तो फिज़िकल एजुकेशन लेना चाहिए, क्योंकि वो बायो से रिलेटेड भी है. मसल एंड माइंड कनेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मसल से रिलेटेड पता चलेंगी, है ना. वो मैं तो भले के लिए बोल रहा था. आईटी समझ रही हूँ ना मैं. हाँ गुड, आईटी समझना. देखो, कंप्यूटर से जितना पास रहोगे, आज की दुनिया ही अब कंप्यूटर से ही है. हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी. क्या पता
बायोलॉजी में आगे जाके मन ना करे तो फिर आईटी में चल जाना, है ना। मतलब अपने को एक्सप्लोर करते रहो, जिस चीज़ में बेहतर हो उसमें और बेहतर बनते जाओ, बेस्ट बन जाओ। आगे बढ़ते हैं। Remember this date, it is more important than July 4, 1776. If there had been no decisions to hold a Continental Congress, there could have been no signing the Declaration of Independence. Before the first meeting of the new Congress, other leaders in a different section of the country was deep in the throes, publishing a summary view of the right of British America. एक सेकंड गाइस। मैसेजेस पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 188 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, देखें, ठीक है। थैंक्स, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने तो गलती करी थी मैथ्स लेके एक या फिर पे फिज़िकल एजुकेशन लेना चाहिए था, इसलिए बोल रहा था फिज़िकल एजुकेशन ले ले, स्कोरिंग है, लोड कम पड़ेगा, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ फालतू सब्जेक्ट लेने की। हाँ, मैंने भी अपने 11th में एक गलती की थी। मैंने 11th में कंप्यूटर साइंस ले ली थी विद मैथ्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री और ख़तरनाक लोड दे रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने 12th में गया, 12th में सब्जेक्ट चेंज करवाया। आखिरी के 6 महीने बचे थे, मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी करवा लिया। कंप्यूटर साइंस को छोड़ दिया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही थी। मेरे दोस्तों ने भाई कंप्यूटर साइंस का भी ट्यूशन लगाया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 3 ट्यूशन, चौथा साला उसका भी लगा दिया। क्या नाम है आपका? उसका नहीं लगाना चाहिए था कंप्यूटर साइंस का। मतलब सोचो 4 घंटे तो वो ट्यूशन में ही रहते थे मेरे दोस्त, और फिर 8 घंटे का स्कूल तो होता ही था सबका, सुबह 8 से 2, 8 घंटे होता है क्या? 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, सॉरी 6 घंटे का स्कूल हो गया, आना जाना मान के चलो, मतलब 8 घंटे मान के ही चलो। आने के बाद सोना और सोने से पहले तैयारी करना, वो सब मिला हो तो 8 घंटे का। अरे एडमिशन हो के क्लास शुरू हो चुकी है, 1 महीना हो गया। सब अलग होते हैं ना, मेरे को पसंद आता हो जाता मेरा। हाँ, मतलब मैं तो बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने कंप्यूटर साइंस ली थी, तो स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर होते हैं ना, वो होते हैं आपके बेसिक, मतलब थ्योरी। तो मेरे फर्स्ट यूटी सेकंड यूटी में मार्क्स आए थे आई गेस 40 में से 39, 40 में से 36 ऐसे आए। पर जब लॉजिकल प्रोग्रामिंग आनी शुरू हुई ना, प्रोग्रामिंग से मेरे को थोड़ा दिक्कत होने लग गई। एरे, लूप्स एंड ये थोड़ा सा सर के ऊपर से जाने लग गया। और मैं फुटबॉल में वैसे ही था, फुटबॉल में स्कूल टीम में था, तो फुटबॉल में ज़्यादा काम रहता था। फिज़िक्स का बस ट्यूशन, मैथ्स का ट्यूशन, और बस ट्यूशन जाता था, रिवाइज़ कभी कुछ किया ही नहीं। और कंप्यूटर साइंस तो छुआ ही नहीं। तो जब लॉजिक की बात आई तो वहाँ पे मेरा लॉजिक लग नहीं पाया। फिर मेरे मतलब मार्क्स जो थे वो 40 में से 29 हो गए। तो वही है, स्टार्टिंग के चैप्टर देख के मत बोलना कि हाँ समझ में आ रहा है, पर करो, कोई नहीं, छोड़ना मत।
इंटरेस्ट थोड़ा भी है तो उसे और बढ़ाओ और करते जाओ। बात है अभी जो बात की थी कि ठीक है दूसरों को बताओ, एक बार बताओ काफ़ी है, कहीं ऐसा ना हो दूसरा तो बन जाए खतरनाक और आप ऐसे ही रह जाओ। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, लव यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल भी सेम टाइम 11 बजे मिलेंगे, 11 से 11:30 तक हम लोग का ये सेशन रहेगा। इस टाइम को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। 30 डेज़ का चैलेंज है, डे 1 कम्प्लीटेड। ठीक है, डे 1 कम्प्लीटेड। थैंक्स प्रीति जी फॉर द स्पैम अटैक, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स मुझे बुलाने के लिए स्पैम अटैक करके, वरना थोड़ा लेट हो जाता मैं। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल फिर से आएंगे इसी टाइम पे। इस बुक को जल्दी ख़त्म करना होगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।